Scouts and Guides, Rowers and Rangers, Unit Leaders and Leader Trainers. It gives me immense pleasure and happiness to see our Facebook flooded with the 15th August pledge. What are the steps forward? You all must be wondering. As we were pledging to make India plastic free and fit, at the same time, Fit India Youth Club was launched by the Ministry of Youth Affairs and Sports by our Honorable Minister Kiran Rijiju. Now these youth club, what is it asking us to do? They're asking us to make ourselves as individuals fit. At the same time, make awareness, adopt families and work in the community to make the whole India fit. What you can do in this? On individual level, you can take 30 minutes to 60 minutes of walk. And not just for a week or for a month, just make it a habit so that you keep yourself fit. Adopt some families and motivate them to be fit. Further, you can conduct marathons, walkathons in your community, in your school, with your unit. Walking is not just being fit. There are also many other ways of being fit, like listening to music, eating healthy food. You can try and adopt a new dance style. Learn it, teach others. Same way, what are the needs of healthy food? What are the importance of drinking water? These are just few of our activities that we are suggesting you. But you all are very creative and you have got immense IQ that you can make new ideas and new activities. Think out of the box, make new activities, create a new vision for making Fit India. Now, we also pledge to make plastic free India. How do we do it? We should refuse to take new plastic. This is going to stop the supply and demand chain. This is how new manufacturing will stop, and then we will indirectly reduce the footprint of carbon. Reuse, use your creativity and make same object in a new vision. Then reduce the use of plastic. As far as possible, use natural, degradable substances which are going to help our Mother Earth. There are lots of ideas. These are just very few of them which I said. A detailed circular number 113, has the details of Fit India and all the various activities that you can do. There is also an annexure which is your reporting format to report back. Your reporting, your activities, your social media coverage is going to help and increase our visibility at all levels. Group, state, national, ministries and also global level. We have all pledged to become the Earth Tribe. Yeah? So let us now put all our teachers in action and help to make our India Fit India. Have a look at the activities and the reporting format in detail. Dear brothers and sisters, reporting format already published in circular number 113, but now we are going to discuss about the Google form in which you can send your regular report. फिट इंडिया फ्रीडम रन का रिपोर्टिंग के लिए एक गूगल फॉर्मेट नेशनल हेडक्वार्टर बॉर्डर स्काउट्स एंड गाइड्स ने डेवलप किया है और इसको गूगल लिंक के थ्रू आप लोग इस आपके जो रिपोर्टिंग है इस रिपोर्टिंग को रेगुलर भेज सकते हैं। रिपोर्टिंग फॉर्मेट शुरू होने से सबसे पहले है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है ये आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस आप डालिए। इस गूगल फॉर्म में जो रिपोर्टर होगा वो रिपोर्टर को ये बताया जा रहा है कि आप आपका एक एक्टिविटी का एक ही गूगल फॉर्म भरिए। अगर आप रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं तो रेगुलर आप अलग अलग गूगल फॉर्म भरिए जिसमें अलग अलग एक्टिविटी आपको दिखाई देगा। हमारे ईमेल एड्रेस के साथ एक्टिविटी क्या क्या आपने किया है उसका डिटेल दिया हुआ है। उसमें से जो एक्टिविटीज है जॉगिंग, सोलो रन,
वॉक, प्लॉगिंग, फुट हाइक, साइकिल हाइक या अन्य प्रकार की आपने किसी भी तरह की रन या साइकिल हाइक इस तरह की कोई भी एक्टिविटी किया है तो इस फॉर्म के थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जॉगिंग मतलब आप इंडिविजुअली अपने लेवल पे या आपके साथी को लेके आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं या आपके लोकल पार्क के अंदर आपने जॉगिंग किया है। सोलो रन किसी को नहीं मिला, आप अकेला दौड़ रहे हैं। वॉक आपने जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और आपने निकला 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपने वॉकिंग करके सुबह वापस आए या इवनिंग वॉक किया, इस तरह का रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। इसके दौरान प्लॉगिंग का मतलब ये होता है फिट इंडिया के साथ साथ हम लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाने के लिए। तो आप जब दौड़ रहे हैं तो आपके रास्ते में अगर किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक चिप्स का पैकेट जो सिंगल यूज प्लास्टिक है पड़ा हुआ है, आप साथ साथ उसको भी उठाते हुए चलिए तो आपको दौड़ना भी होगा और आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका विलेज जो है वो साफ सुथरा भी होगा। इसको प्लॉगिंग कहते हैं। नेक्स्ट, स्काउटिंग के लैंग्वेज में हम जिसको हाइक कहते हैं, फुट हाइक या साइकिल लेके आप निकले तो साइकिल हाइक। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आप इस फॉर्म के थ्रू आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बीएसजी रीजन। जैसे आप सबको पता होगा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जो स्टेट्स है इनको 6 रीजन में बांटा हुआ है। तो आपका जो रीजन है इस रीजन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेनू में जाके। देन स्काउटिंग गाइडिंग स्टेट, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इधर स्काउटिंग गाइडिंग स्टेट के बारे में पूछा गया है, ये भी ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर ही है। आपका जो स्काउटिंग गाइडिंग स्टेट है ड्रॉप डाउन मेनू में जाके आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ईस्टर्न रेलवे है तो ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या इस प्रकार की जो हमारा स्काउटिंग गाइडिंग का स्टेट डिवाइड किया हुआ है उसको आप सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब हो सकता है आप 5 साथी, आपके फैमिली में 10 मेंबर, आप एक साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट जो करेंगे आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपका नाम इसमें आएगा नेम ऑफ द रिपोर्टर के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में आपका सेक्शन है कब, बुलबुल, स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर या आप यूनिट लीडर है या किसी भी प्रकार की लीडर ट्रेनर जो आपके नेतृत्व में आपके साथ आपकी टीम काम कर रहा है, तो इसमें वो सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर में आप अपना जो मोबाइल नंबर है आपके पास, आप अगर कब बुलबुल है या स्काउट गाइड है आपके पास अगर मोबाइल नंबर पर्सनल नहीं है तो आप आपका पेरेंट्स के परमिशन से उनके मोबाइल नंबर भी आप यूज कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू गेट परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, डेट, किस डेट पे आप इस इवेंट को कर रहे हैं, जैसे जॉगिंग, प्लॉगिंग, रन, साइकिल हाइक, ये जो कुछ आपको बताया गया है ये किस डेट पे आपने किया है उसको लिखना है, डेट, मंथ, ईयर की फॉर्मेट में। नेक्स्ट, फ्रॉम एक्चुअल टाइम, जिस टाइम पे आप उस एक्टिविटी को शुरू किया, और टू एक्चुअल टाइम, जिस टाइम तक आपने उस एक्टिविटी को किया। उदाहरण के बेस में मैं बता रहा हूँ, इफ यू स्टार्ट योर प्रोग्राम एट 6 o'clock एंड यू रन फॉर हाफ एन आवर, देन 6 AM to 6:30 AM। 5 बजे आपने प्रोग्राम शुरू किया, 5:30 to 6:30 1 घंटे का प्रोग्राम किया आपने, तो वो फ्रॉम 2 के अंदर वो आ जाएगा। देन नंबर ऑफ स्काउट गाइड, रोवर्स, रेंजर्स, लीडर्स पार्टिसिपेटेड। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपके साथी जो स्काउट गाइड है, रोवर रेंजर है या आपके पेट्रोल के कोई भी मेंबर है उनको लेके आप दौड़े हैं, तो कितने लोग आप लोग एक साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था वो लिखना है, 10, 12, 15, 25 जो भी है। नेक्स्ट आता है आपके टोटल किलोमीटर कवर्ड बाय ईच पर्सन। टोटल किलोमीटर कवर्ड मीन्स आपको ये फॉर्मेट जो बनाया गया है स्पेशली रनिंग पर्पस, हाइक पर्पस, प्लॉगिंग पर्पस, जॉगिंग पर्पस के लिए, तो इसके दौरान आप कितने किलोमीटर कवर किया है इसमें ध्यान रखना है कि किलोमीटर आपको कैसे मिलेगा। आप जब दौड़ रहे हैं, आप आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर आ गया है, या आप आपके जीपीएस वॉच के थ्रू या अन्य किसी एप्लीकेशन के थ्रू या आपके मोबाइल में भी होता है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना तो स्टार्ट दबा दीजिए और देन आप कितना किलोमीटर कवर किया है, तो वो आपके पास जीपीएस के थ्रू डिजिटली आपके पास आ जाएगा कि आपने टोटल कितना किलोमीटर कवर किया। तो इस पे वो लिखना है इन न्यूमेरिक्स, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, व्हाटएवर। नेक्स्ट आपका जो कॉलम है दैट इज डिटेल्स ऑफ विलेज कवर्ड। आप इसके अंदर आप जिस एरिया के बच्चे हैं, जिस एरिया में आपकी
आप रहते हैं उस एरिया के बारे में पूछा गया है जिस एरिया में आपने एक्टिविटी किया। सो नंबर ऑफ विलेज कवर्ड, हो सकता है आप अपने विलेज के अंदर ही घूमा, या आपने साइकिल हाइक किया तो 1, 2, 3 या 4 विलेज कवर किया, तो उसमें वो लिखना है कि कितना विलेज, कितना गांव आपने दौड़ा या हाइक किया या जॉगिंग करके पहुंचा, वो लिखना पड़ेगा। देन नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द विलेज के अंदर किस किस विलेज में, अगर एक ही गांव के अंदर आपने ये एक्टिविटी किया है तो उस गांव का नाम लिखना है, 2 गांव है तो 2 गांव का नाम लिखना है। देन नेम ऑफ द ब्लॉक, कौन सी ब्लॉक के अंदर वो आता है। देन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एंड रेवेन्यू स्टेट। पहले हमने आपको जो लिखने के लिए बोला था शुरू में 3rd या 4th कॉलम के अंदर कि स्काउटिंग गाइडिंग स्टेट आपको लिखने के लिए, और इधर आपको जो लिखना है रेवेन्यू स्टेट एज पर आवर जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल स्टेट्स जो है वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेटेड। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हम कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लोकल बच्चे जो स्काउट गाइड नहीं है या रोवर रेंजर नहीं है आपके साथ जोड़ना चाहते हैं और आप उनको साथ में लेके चले, तो उनका भी कितना, आपके विलेजर्स या गांव के कितने सदस्य आपके साथ उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है उसका नंबर चाहिए। कि हमारे साथ 5 स्काउट गाइड के बच्चे थे जो ऊपर में आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, और साथ में जो नॉन स्काउट विलेजर्स है, नॉन स्काउट बच्चे हैं 25 हमारे साथ बच्चे और दौड़े, तो ये वाला पोर्शन इधर मेंशन करना है। और चलते चलते दौड़ते दौड़ते आपको कुछ फोटो भी लेना है और ये फोटो जो है इसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप इस गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिए। ये आप रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर आपका जितना एक्टिविटी है आप जो एक्टिविटीज इधर दिया हुआ है एक्टिविटीज को कीजिए, और साथ ही साथ आप इसको हमें गूगल फॉर्म के थ्रू आपका रिपोर्ट राष्ट्रीय मुख्यालय में भेजिए ताकि हम इसको आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है फिट इंडिया यूथ क्लब, इसमें हम इसको सबमिट कर सके। तो एक गूगल फॉर्म के लिए आप एक ही बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक्टिविटी का। सो मेरे हिसाब से बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से एक्टिविटी करने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है और आपका फोटोग्राफ्स भेजना है। तो आइए फिलअप करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट को। फिट इंडिया मूवमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम फिलअप करना होगा, आपने कब से कब तक किया, तो इसमें आपको तिथि अंकित करना है। उसके नीचे कवरेज में आपको अपने राज्य का नाम, अपने ज़िला का नाम और जिस गांव को आपने कवर किया उस विलेज का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है। नंबर ऑफ ऑफिशियल्स यूथ वॉलंटियर्स ट्रेंड, जितने ऑफिशियल्स या यूथ वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण हुआ है यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे। इसके बाद मुख्य रूप से आपको 5 कॉलम इस रिपोर्टिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है। पहला कॉलम है नेम ऑफ द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, आप जो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं उसका नाम है, जैसे ओरिएंटेशन, अवेयरनेस, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। फिटनेस @ होम फिटनेस विद फैमिली। 3rd आउटडोर सिलेक्टेड एक्टिविटीज। 5th अदर्स इफ एनी, और नेक्स्ट ग्रैंड टोटल। सेकेंड कॉलम है नंबर ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड, हमको इसमें फिलअप करना होगा कि हमने किस तरह का एक्टिविटीज कंडक्ट किया। अवेयरनेस प्रोग्राम कितना किया उसका संख्या लिखेंगे। फिटनेस @ होम फिटनेस विद फैमिली का कितना प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया, इसमें भी इसका नंबर लिखेंगे। आउटडोर सेलेक्टेड एक्टिविटी, अगर हमने कुछ एक्टिविटी सेलेक्ट किया और उसका नंबर लिख रहे हैं तो हम उसका नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अदर्स इफ एनी में भी हम नंबर लिखेंगे। और लास्ट में हमारा ग्रैंड टोटल, हमने टोटल कितना एक्टिविटी कंडक्ट किया उसका कुल योग यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट कॉलम में। नेक्स्ट हमारा कॉलम है टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज अंडरटेकन, कितने तरह का हमने फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी किया तो उसका टाइप्स हमको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम कितना था, तो किस तरह का प्रोग्राम रहा, वेबिनार रहा, अवेयरनेस प्रोग्राम रहा, ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, तो हमको जस्ट इसका टाइप्स लिखना है। फिटनेस @ होम फिटनेस विद फैमिली में हमने जो फिटनेस को लेकर के एक्टिविटी किया तो किस तरह का था, योगा प्रैक्टिस था या फिर वॉक रन था या फिर आपका जनरल एक्सरसाइज था, तो किस तरह का हमने किया वो फिजिकल फिटनेस का टाइप हमको लिखना है। फिटनेस @ होम फिटनेस विद फैमिली में आपको मेंशन करना होगा टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी के अंदर कि आपने किस तरह का फिटनेस एक्टिविटी कंडक्ट किया, योगा किया या रन किया या वॉक किया
या एरोबिक्स किया, या फिर आपने फिजिकल एक्टिविटी किया, जनरल एक्सरसाइज किया। तो जिस तरह का भी एक्टिविटी आपने किया, जस्ट उसका टाइप हमको लिखना है। सेम वे में आउटडोर सिलेक्टेड एक्टिविटी में आपने क्या, किस तरह का एक्टिविटी कंप्लीट किया, डोर टू डोर विजिट किया, साइकिल हाइक किया, या हाइक किया, या साइकिल रैली किया, या ट्रैकिंग किया। तो जिस तरह का एक्टिविटी हम कंडक्ट करेंगे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इन 3 के अलावा अगर हमने कोई और दूसरा काम किया तो अलग तरह का है, तो इफ़ एनी में हम उसको फिलअप करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कॉलम हमारा आता है नंबर ऑफ फैमिलीज कंडक्टेड फिटनेस एक्टिविटीज़। अभी हमने जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ का नाम देखा, तो उसके तहत कितने फैमिली ने कंडक्ट किए हैं इसका नंबर हमको लिखना है। ओरिएंटेस अवेयरनेस प्लानिंग ट्रेनिंग में कितना फैमिलीज थी उसका नंबर लिखना है। फिटनेस @होम फिटनेस विद फैमिली में भी हमको नंबर लिखना है। आउटडोर सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ में भी नंबर लिखना है। और अदर इफ़ एनी में कितने नंबर ऑफ फैमिलीज ने फिटनेस एक्टिविटी कंडक्ट किया इसका नंबर लिखना है। और अंत में इन सभी नंबर का योग करना है। अब हम आते हैं लास्ट कॉलम, नंबर ऑफ यूथ वॉलंटियर्स फैमिलीज एंड अदर अंडरटुक फिजिकल एक्टिविटीज। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि कितने यूथ, कितने फैमिलीज मेंबर्स एंड कितने अदर फ्रेंड सर्कल, वेल विशर जो है इस तरह का एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए। अवेयरनेस एक्टिविटी, फिटनेस @होम फिटनेस फैमिली एक्टिविटीज़, आउटडोर सेलेक्टेड एक्टिविटीज़। और इसके अलावा अगर कोई है तो मेल अलग फीमेल अलग, दोनों का अलग अलग हम संख्या यहाँ लिखेंगे, फिलअप करेंगे और इन दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे। सपोज दैट ओरिएंटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में टोटल 150 अगर मेल पार्टिसिपेट किया और 50 फीमेल किया तो टोटल में हमारा 200 होगा। तो इसी तरह से हम सारे कॉलम को फिलअप करेंगे। इसके बाद प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो अपना नाम लिखेंगे और अपना साइन करके ये जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसको राष्ट्रीय मुख्यालय के ईमेल आईडी info@bsgindia.org पर भेज देंगे। तो धन्यवाद। Remember children, our time is short. This movement or this activity is only for a month. It will go on till 14th of September and your reporting last date is 20th of September. So hurry up and start working, get going to make Fit India.